Morning. Today we will complete the question answer part of the rise of a small kingdom in South India. Who was the founder of the Chola dynasty? Vijayalaya. The famous temple built by Raj Raj I at Tanjore was Raj Rajeshwar Temple. Which kingdom gave a final blow to the Pandyas? Vijayanagar. The term Mandalam stands for province. Which was the main source of income of Chola ruler? Land tax. कितना था ये land tax? 1/3. During 750 CE, South India saw the rule of Cholas, Cheras, Pandyas. Indian historians believe that Chalukyas were great warriors. Dash defeated Pallavas, Cholas defeated Pallavas. Dash succeeded Rajraj. Rajendra Chola succeeded Rajraj. Dash was the main center of education during 700 CE to 1200 CE in South India, Kanchipuram. Sought the name of kings as per their dynasties and arranged them according to their period. चोला में उसके फाउंडर कौन थे? विजयालया के ग्रैंडसन प्रांतक. उसके बाद कौन आए? राजराज के सक्सेसर कौन थे? राजेंद्र चोला. यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन याद रखना है. पांड्या में फाउंडर कौन थे? कंडुनगोरी. सेकंड नंबर पे मरुवर्मन अवनी. थर्ड नंबर पे जलवर्मन सुंदर. अब डी वाला क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं. Name the powerful kingdom that emerged in South India in the 8th century. 8th century कहां से कहां तक होता है? 701 से 800 तक को क्या कहते हैं? 8th century कहते हैं. कौन कौन था उस समय? चोला किंगडम, Cholas, Cheras, Pandyas. Name the 3 kingdoms that were mentioned in Asoka's edicts: Cholas, Pandyas, Cheras. Which language flourished during Chola and Pandya period? Sanskrit, Tamil, Kannada, Telugu. संस्कृत को क्या कहते थे? Scholars language. Name the main area that formed the part of Pandya kingdom. Madurai, Tirunelveli, Travancore. Where were the rock-cut temples built? Mahabalipuram, Kailasnath. अब ई को सॉल्व करेंगे हम लोग. Mention the main achievement of Rajraj the Great. The main achievements of Rajraj the Great are: he pursued a policy of conquest for 14 years and conquered the Chalukya kingdom of Vengi and captured Kerala and Madurai. He built the famous temple Raj Rajeshwar at Tanjore. He spread the message of Vedas among the common people. क्या क्या उन्होंने चालुक्य को हराया और केरल और मदुरई पे कब्जा कर लिया. उसके बाद उन्होंने फेमस टेम्पल राज राजेश्वर बनाया. कहाँ पे? तंजौर में. उन्होंने वेदा के मैसेज को कॉमन पीपल तक पहुंचाया. Describe the socio-economic condition of the people in southern state. The socio-economic condition of the people in the southern state was good, but the society of South India was caste-ridden. The Brahmin princely class and Kshatriya warrior class dominated the lower class. तो क्या बोल रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी. वो लोग पुअर नहीं थे, सब अच्छी कंडीशन में थे. लेकिन वहां पे भी नॉर्थ इंडिया की तरह कास्ट रिडन सिस्टम था. ब्राह्मीण जो कि प्रिंसली क्लास के थे, क्षत्रिय जो वॉरियर क्लास के थे, अदर लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे. द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द
people were agriculture, trade and weaving. वहां का चीफ ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड वीविंग. द इरिगेशन फैसिलिटी वेयर वेल डेवलप्ड सो द एग्रीकल्चरल यील्ड वेयर हाई. वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, इसलिए एग्रीकल्चरल यील्ड कैसा था? हाई था, अच्छा था. द चोला रूलर्स स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ द इनकम ऑन पब्लिक वेलफेयर. चोला रूलर का जो इनकम था उसका मेजर पार्ट वो पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करते थे, इसलिए वहां का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो अच्छा था. इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी तो खेती अच्छी होती थी, और जो वहां का कॉमन पीपल होता था वो अच्छी कंडीशन में था. बट कास्ट सिस्टम वहां पे अभी भी था. What were the religious belief of the people in the southern state during medieval period? Religious belief क्या था उस समय का? Hinduism was the religious belief of the people in the southern state during medieval period, where Hinduism was the most popular रिलीजन. सबसे ज्यादा क्या मानते थे? हिंदुइज्म को मानते थे. वैदिक सेक्रीफाइसेस वेयर क्वाइट कॉमन. वैदिक सेक्रीफाइसेस होते थे. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर नॉट पॉपुलर देयर. बुद्धिज्म और जैनिज्म को समय नहीं मानते थे. द कल्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. विष्णु की पूजा करते थे और शिव जी की पूजा करते थे. डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द साउदर्न रूलर्स. आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस समय का कैसा था? द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर द साउदर्न रूलर were very good. Even today, these art and architecture mesmerize us. The ruler of the southern kingdom were not only great warriors but also great patron of art and architecture. Developments आर्ट और आर्किटेक्चर का साउदर्न रूलर के समय अच्छा था. आज भी अगर हम लोग उसको देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. The ruler of the southern kingdom were not only great warriors. सिर्फ वॉरियर नहीं थे, वो पेट्रॉन थे. किसके? आर्ट और आर्किटेक्चर थे. इसका कैसे हम कह सकते हैं कि वो आर्ट और आर्किटेक्चर के पेट्रॉन थे? उसका उन्होंने दे बिल्ट अ नंबर ऑफ टेम्पल. उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनवाए. फॉर एग्जाम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल एट तंजौर बाय राजराज वन. The large rock cut temples at Mahabalipuram and Kailasnath temple. The Shiva temple of Tanjore, the bronze statue of Nataraj are fine examples of Chola art. List the difference between the kingdom of North and South on the basis of following aspect. एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से बताइए कि नॉर्थ इंडियन किंगडम और साउथ इंडियन किंगडम में क्या अंतर था. नॉर्थ इंडियन किंगडम और साउथ इंडियन किंगडम दोनों हमने पढ़ा है. मैंने अभी साउथ इंडियन किंगडम को पढ़ाया है आपको. तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंसेस भी है. तो सिमिलैरिटीज पूछा नहीं गया है, बट जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है, आपको पता होना चाहिए. और डिफरेंसेस क्या है वो यहाँ लिखा है. सिमिलैरिटीज क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों, नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों में हेड कौन होता है? किंग होता है. और स्टेट जो है डिवाइडेड है प्रोविंस में, ये दोनों में होता है. लेकिन प्रोविंस को नॉर्थ में प्रोविंस ही कहते हैं, लेकिन साउथ में उसको क्या कहते हैं? मंडलम कहते हैं. प्रोविंस नोन एज प्रोविंस ओनली, बट हियर
province known as Mandalam. नॉर्थ में स्पेंड मनी ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग आर्मीज, वो वहां पे स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने में विश्वास करते थे, इसलिए ज्यादा पैसा उस पर खर्च करते थे। लेकिन साउथ में स्पेंड मनी ऑन पब्लिक वेलफेयर, वो अपने पैसों को कहाँ खर्च करते थे? पब्लिक वेलफेयर पे। सोसाइटी दोनों में कास्ट रिडन थी, नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों में कास्ट सिस्टम था। ब्राह्मण वेयर इन हाई पोजीशन, जो नॉर्थ है, नॉर्थ में ब्राह्मण हाई पोजीशन पे थे, लेकिन यहाँ पे साउथ में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही हाई पोजीशन पे थे। शूद्रास हु वेयर बर्डन बाय टैक्स कल्टीवेट लैंड्स, कौन लैंड को कल्टीवेट करता था? शूद्रास। वहां पे साउथ में कौन करते थे? द पीजेंट फिल्ड द लैंड विच the peasant tilled the land which belonged to ruler or temple. जो पीजेंट थे, वैसा किसान, छोटा किसान जिसके पास अपना खेत नहीं है, वो वहां पे रूलर और टेम्पल के खेतों का ध्यान रखते थे। वुमेन कंडीशन वाज नॉट गुड, नॉर्थ इंडिया में उस समय वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन साउथ इंडिया में वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगामी वेयर देयर, नॉर्थ इंडिया में क्या था? प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगामी सभी था, लेकिन साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं था, ना वहाँ सती प्रथा होता था, ना चाइल्ड मैरिज, ना ही पॉलीगामी होता है था, इसलिए वहां पे वुमेन की कंडीशन कैसी थी? अच्छी थी। इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या था? डिफरेंसेस। नॉर्थ में इकोनॉमिकल कंडीशन वाज नॉट गुड, नॉर्थ में जो डिफरेंस था, जो रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, जो रिच थे वो बहुत रिच थे, जो पुअर थे वो बहुत पुअर थे। लेकिन साउथ में क्या था? इकोनॉमिकल कंडीशन वाज गुड। वहां पे इकोनॉमिकल कंडीशन कॉमन पीपल का अच्छा था। नॉर्थ में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम क्या था? कि पैसे के बदले सुरक्षा दिया जाता था। फ्यूडल सिस्टम में पैसे लेकर सुरक्षा दिया जाता था, लेकिन साउथ में फ्यूडल सिस्टम नहीं था। नॉर्थ में दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्योंकि वहां पे नॉर्थ इंडिया में फ्यूडल सिस्टम था, तो वो अपने सुरक्षा के बदले वो पैसे लेते थे, इसलिए वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो पैसे होते थे, पैसे को खर्च भी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने में करते थे। लेकिन साउथ इंडिया में दे स्पेंड मनी ऑन पीपल वेलफेयर, वो पीपल वेलफेयर का काम करते थे। ये मनी का, नॉर्थ में मनी से आर्मी बनाते थे, साउथ में वे वेलफेयर का काम करते थे। रिलीजन में नॉर्थ और साउथ में क्या अंतर था? नॉर्थ में दे वर्शिप विष्णु, शिवा, काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। वो लोग विष्णु, शिवा के साथ साथ काली, लक्ष्मी और दुर्गा की भी पूजा करते थे। एजुकेशन में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या सिमिलरिटी था? संस्कृत दोनों जगह कॉमन, दोनों जगह संस्कृत में पढ़ाया जाता था। फेमस एजुकेशन सिस्टम, फेमस एजुकेशन सेंटर कौन कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला। लेकिन साउथ इंडिया में कौन सा फेमस है? कांचीपुरम। नॉर्थ में नालंदा, विक्रमशिला, साउथ में कांचीपुरम। लैंग्वेज ग्रोन इन दिस टाइम्स, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा लैंग्वेज ग्रो हुआ? संस्कृत, प्राकृत, पाली, मराठी, गुजराती एंड बंगाली। प्राइमरी एजुकेशन इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ होता था? टेम्पल में भी होता था, मोनेस्ट्रीज में भी होता था। साउथ इंडिया में
लैंग्वेज कौन कौन सा ग्रो हुआ? संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु। फ्री एजुकेशन दिया जाता था वहां मठ में। कहाँ पे? मठ में। मठ क्या था? विच इज अटैच विथ टेम्पल फॉर फ्री एजुकेशन। नॉर्थ और साउथ में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या अंतर था? मिनिएचर पेंटिंग। नॉर्थ में क्या? मिनिएचर पेंटिंग था। साउथ में नो मिनिएचर पेंटिंग। वहां पे मिनिएचर पेंटिंग नहीं था। और टेम्पल कौन कौन सा फेमस था? लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल। मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर। और सन टेम्पल, सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क में। साउथ में कौन सा आर्किटेक्चर फेमस है? रॉक कट टेम्पल, महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल। थैंक यू। ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में।